also. So now she is permanently, she has joined with NIOS. So she is here to take us through the last quadrant of online course, which is development of assessment in online course. So we will be having the first session to understand what is assessment, how it has to be created, what type of assessment can be created and all that. And the second session will be on practical, where you will be developing some kinds of assessment. Okay. So afternoon is something what we have learned in this 3.5 days. We will now start really writing up, prepare an online course management. We'll work on that in the afternoon. Okay. Over to you. Okay. Thank you so much, ma'am, for inviting me. I am. One second. So, as ma'am said, I have worked with NCERT for around 5 years. I am Dr. Alka Singh. I am now Research and Evaluation Officer at NIOS, National Institute of Open Schooling, which is headquartered in Noida. So we work in the open schooling system, like here we are working on the formal schooling system. So today's session is on development of assessment in online courses. So you have studied or discussed about the courses we have to develop. So in development of courses, we need assessment also. So in this session, we will be covering on assessment in online courses. What are the types of assessment in online courses, and then digital tools to develop assessment in online courses. Then कोर्स का जो एनालिटिक्स है उसका यूजेस है, जो भी डेटा एनालिटिक्स है कोर्स डेवलपमेंट में और असेसमेंट के रिगार्डिंग वो हम डिस्कस करेंगे. Then feedback and follow up in online courses. So this is the outline which we will be discussing in this session. So before starting, let's reflect and answer this question. You have to think one word which comes in your mind when you are thinking about the online assessment. Different types of quiz. Yeah, you have to write it in join@menti.com and use this code, or you can access this from this QR code also. So one word that comes to your mind when you hear the word online assessment. In the back also you can access from the QR code. Yes. Sir, so we are getting the inputs from all of you. Different inputs. Quiz is the biggest response we are getting from all of you. Quiz, yes. Self-assessment is there, multiple choice question, assessment of learning, online quiz, quizzes. So quiz is the main focus point. Because I am seeing that different, like online quizzes also there, MCQ, engaging, Google form, fast and reliable, digitally connected, evaluation, learning app, easy, quick assessment, faster way of evaluation, low cost, easy to analyze, internet, marks. जो जो डिफरेंट है वही मैं बोल रही हूँ. लर्निंग गैप, टेस्टिंग योरसेल्फ, चीटिंग. Good. Marks, interactive worksheet, learning gap, digital platform, automated correction,
मुझे लग रहा है ये सेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने तो सारे ही पॉइंट्स बता दिए यहाँ पे. फास्ट एंड रिलायबल, नो पेन पेपर, डेटा ड्रिवन, कूल. सेल्फ ग्रेडेड, चीटिंग, क्विज, इंटरनेट, these are the biggest words. Mind map. मैम जो कई बार आ रहे हैं वो अपने आप एनालाइज करके उनको बिगर फॉन्ट में दिखा रहा है. हाँ, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो बिगर फॉन्ट में है. Is there any restriction because one can input several types? Yes, that you have to just give in the Mentimeter. Internet comes bigger now. No, many people are writing this. Only I. Okay. Yes, sir, because once, like, many times I can appear on the screen. Yeah, that's the setting we have to do. अगर मैं ऐसे करती कि वन टाइम रिस्पॉन्स ओनली, देन आप एक ही बार कर पाते. मैंने मल्टीपल रखा है तो कितनी बार भी कर सकते हैं, तो नो रिस्ट्रिक्शन. सो दिस इज द आउटलाइन of this session also. Self-graded, quiz, cheating, internet, mind map, these are the biggest words which came from your point of view. So let's go in the presentation. So अभी हमने आपके views देखे. Now we will be discussing of the learner's point of view regarding the online course and the teacher's point of view regarding the online course. तो हम सभी जानते हैं कि दोनों का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम एग्जामिनेशन या असेसमेंट की बात करते हैं. तो सबसे पहले सेल्फ इवेल्युएट द लर्निंग. जो लर्नर होता है वो कई बार उसको रियलाइज होता है कि जब वो असेसमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको ये लगता है कि आई डिड बेटर देन बिफोर. तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं ही और शी सेल्फ इवेल्युएट हिज और हर लर्निंग through the assessment. So assessment help learners reflect on how well they have understood the content whichever they are studying in the online course, and reality check होता है उनको कि उनको कितना आता है कितना नहीं आता है. तो वो सेल्फ इवेल्युएशन के लिए यूज कर सकते हैं असेसमेंट को. देन लर्नर्स जो हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज अपनी कैपेसिटीज को समझ पाते हैं थ्रू द असेसमेंट. जैसे कि वो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझ पाते हैं, एंड दे बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस एंड हेल्प दैट हेल्प्स देम टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर ओन लर्निंग जर्नी. जो उनकी खुद की लर्निंग जर्नी है उसका ओनरशिप ले पाते हैं, एंड दे कैन अंडरस्टैंड देयर ओन कैपेबिलिटीज ओन कैपेसिटीज. देन लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम असेसमेंट को देखें तो वो अपने आप को इंसेंटिव्स या मोटिवेट कर पाते हैं थ्रू द असेसमेंट. अगर वो 8 आउट ऑफ 10 उनको मार्क्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो समझ पाते हैं कि वो कहाँ पर हैं और उनको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है. तो वो मोटिवेशन के लिए भी यूज़ करते हैं असेसमेंट को. अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इंश्योर करते हैं अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स. क्योंकि आप जब भी असेसमेंट क्रिएट करने का भी सोचते हैं, व्हेनेवर यू स्टार्ट डेवलपिंग द असेसमेंट, any technique, any test, you focus on the learning outcomes, Bloom's taxonomy. आप सबसे पहले उसी पर फोकस करते हैं, then you start working on your assessment type or assessment questions. So you ensure the achievement of learning outcomes. Then you determine extent of learners' learning. You want that your learners are learning through the online course. So you develop those kind of questions or those kind of course that help them to learn better. So you determine the extent of learners' learning. Then you check the effectiveness of instructional strategies used. जैसा आप अपने जो learners का data analytics से you can refer कि आपका जो instructional strategies है is that working well or not. अगर एक क्वेश्चन पे या एक टॉपिक पे आपने कोई क्विज दिया है और उसमें लगातार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो यू कैन सजेस्ट द न्यू और इनोवेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज. यू कैन चेंज योर लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन योर ऑनलाइन कोर्स.
So this is the viewpoint regarding the assessment, online assessment, from the point of view learners and teachers. Now this is a case study. You just read it for 1 minute and then we will discuss it. Imagine a teacher, Miss Radhika, teaching an online course with 200 learners. For the first 3 weeks, and everything looks fine. Students log in, video show viewed, and assignments are being downloaded. But suddenly, she noticed that only 18% of learners submit the first quiz. She is shocked because she expected 80 to 90% of participation. So, what's wrong with the strategy of Radhika? Or what's wrong with the online course that she expected to be the 80 to 90% participation, but she noticed that only 18% of learners submitted the first quiz. Maybe time कम हो और questions ज़्यादा हो. Maybe the quiz was not aligned with the content. Content may not be not matching with the assessment. not matching with the requirement or expectations. Okay. Anything else? Not view the videos completely. Just see it. Sorry, sir. Actually, they did not. Did not view. Okay. No, I say the types of quizzes, like same MCQ type, that could be a reason of too many questions. Maybe the assignments will be broken in parts. Means first a video, then few assignment questions, then again video, then questions. This continuously, if we take a session for a long time, and then at the end of the session we are supposed to submit the assignment, then definitely I guess many of you would not be interested in submitting the assignment. So it should be in break. Means after one video something else assignment, then again one video assignment. Maybe assignment should be Regularity or continuous. hard, really hard. Correct. And it also depends on what kind of quiz was it. Okay. Maybe the learners not aware It about can the chart. be repeated, One by one. Generally it happens when we are watching a video and we are supposed to means appear for that assessment, then only we can move on to the next, then we generally do it. If it's something we after watching the complete video everything is done, then we are supposed to submit the assignment, then sometimes we people don't show our interest in submitting the assignment. So I think there should be a break. Maybe the viewers didn't see the video completely, right? Even if you see the video for 3-4 seconds, it shows it is viewed, right? हो सकता है स्टूडेंट को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से उनका असेसमेंट किया जाएगा. Might be they are not aware of the Lack of process. clear instruction, like this you can say. Anything else? Maybe the quiz not mandatory for them. We can skip and move on, yeah. So instructions were not clear. Okay. And internet issue. Technical issue. User Suppose interface. Google right, form और is background जैसा difference भी हो सकता है. Google form is not interesting, then background is more. इसमें ये बताया नहीं है कि क्या था तो It's a reality, man, that many of the kids are not aware of the functionality of devices, like how touch functions, lag, scratching, and these type of things. Lack of awareness regarding these things. एक मेजर पॉइंट जो एक सर ने बोला भी इधर. यस सर. Assignment should be submitted at the same time. ओके. Quiz. So ऑनलाइन कोर्सेज का तो मतलब यही होता है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी. Madam, multiple assignments should be there for the assessment. यस दैट इज द पॉइंट. सर मल्टीपल असेसमेंट रेगुलर. जो लर्निंग गैप है उसको मेजर करने के लिए रेगुलर असेसमेंट की वो दिख रही है आपसे सर. ये मेजर जब मैंने भी केस स्टडी मैंने चैट जीपीटी से ही क्रिएट करवाई है तो मुझे भी यही था कि मेन पॉइंट वही है कि रेगुलर नहीं है. उसको 3 वीक के बाद ऐसा लग रहा है बीच में कुछ नहीं है. तो हम ये समझेंगे कि क्या है नीड ऑफ असेसमेंट एज पर द केस स्टडी ऑल्सो एज वी ऑल डिस्कस्ड. सो फर्स्ट इज ensure rigor in online courses. We have to ensure rigor. We have to ensure the clear instructions, clarity about the assessment scheme. तो हमें ये
इंश्योर करना है. देन टाइमली इंफॉर्मेशन ऑफ लर्नर प्रोग्रेस. अब हम 3rd वीक के बाद एक क्विज दे रहे हैं. हमें हर वीक के बाद या फिर वीक के बीच बीच में या वीडियो में भी एम्बेडेड क्विजेज होते हैं, तो वो वी कैन यूज. तो हमें हर जो लर्नर्स के प्रोग्रेस है उसका टाइमली इंफॉर्मेशन देना, और टाइमली इंफॉर्मेशन के लिए वी नीड असेसमेंट. तो वो असेसमेंट मे बी दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द समेटिव मार्क्स, बट हम उसको फॉर्मेटिव के तरह से यूज कर सकते हैं. मे बी इन द बिगिनिंग डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरह यूज कर सकते हैं. तो टाइमली इंफॉर्मेशन ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस इज नीडेड इन ऑनलाइन कोर्स. Then demonstration of learners learning. How we can demonstrate? Through the assessment only. When the learner is viewing a video, in between there are 1-2 questions, then he can demonstrate. He can get the idea that he is understanding or she is understanding the course. Then identifies learners' strengths and weak points. This is also required. This is also the part of assessment. Through the assessment only, the learners get the feedback that he's learning or not learning, he's lacking behind. Everything is dependent on the assessment. That assessment can be used for marking, for grading, or can be used for identifying the gaps also. Then feedback to the teacher also. This is important. This is main need of assessment, that teacher get the feedback about his or her instructional strategies, teaching learning material, approach towards the online course. So feedback bhi zaruri hai. Feedback can also comes under the assessment. So these are the needs of assessment in online courses. Now, what are the benefits and limitations of online courses? Can I get some responses on this? Online course जो हमने अभी मेंटीमीटर में देखा, उसमें भी हमने चीटिंग एक बड़ा पॉइंट था जो लिमिटेशन में आता है. बेनिफिट्स भी काफी सारे ऑटोमेटेड है, काफी सारे हैं. तो और कुछ पॉइंट्स? फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, Cost Flexibility to mass over a large base. Easy for evaluation. easy for evaluation when it is objective. A large number of students can be assessed. Correct. Because of automated. Materials. Yes, sir. Multiple kind of methods can be accessed. Okay. Convenient for especially for those children who are somewhere in the remote areas. Maybe if they're not able to come and attend the classes, they can sit at home. Okay. And using e-content, we can make learning more enjoyable. Limitation में internet is one of the limitations. Yes. Remote areas. There is major issue in limitation element. We are not able to track students, whether students actually doing the thing or someone else is doing on his part. Correct. And also, it will be less interactive. Limitation. Okay. Face-to-face. There is no monitoring. Monitoring, lack of monitoring. Yes. Digital divide. Technical support. Yes. That internet issue. Or, Digital literacy must be there. yes. This is also one point. Digital literacy is also needed. Face-to-face interaction. She learns best to spend more time on the screen. Okay. मैडम लर्नर एंड एग्जामिनर बोथ में भी डिफरेंट. परीक्षा कोई दे रहा है, सीख कोई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है. हाँ. That is cheating. In personification. Okay. लिमिटेशन है कि So- एक साथ हम कितने बच्चों को करा सकते हैं. तो प्लेटफॉर्म जो है 40-50 बच्चों का वो कराता है. एक हो सकता है. वो फ्लेक्सिबिलिटी तो एक बेनिफिट है ऑनलाइन असेसमेंट के लिए. क्योंकि हम एक साथ कराएंगे Login. नहीं तो बाद में उनको When चीटिंग you have to log in and attend the classes, there is a limitation. Okay. For some courses, we have to log in and then there would be the limitation. Most of the courses we have to log in, yeah. Because we need data analytics also. Yes. So flexibility is one of the biggest point in the benefits, because we can cater to larger numbers of learners through online assessment, online courses. So flexibility is the main point. Then repeated practice.
we can do in online system, we can do the repeated practice again and again. We can reshuffle the questions and get it done by the learners. Then enhance accuracy in grading. Because of automated grading, हम accuracy को भी maintain कर सकते हैं, ensure कर सकते हैं through the online courses. बट ये एक्यूरेसी मेजरली क्वांटिटेटिव असेसमेंट में ज़्यादा यूजफुल है. क्वालिटेटिव में भी है व्हेन वी यूज द रूब्रिक्स, तो हम उसमें भी कर सकते हैं एक्यूरेसी, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है सब्जेक्टिव में. मॉल एग्जाम दे रहे हैं वो भी तो मैटर करता है, मेरे नाम पे मैडम दे रही है. हाँ, वही चीटिंग, वो भी हमने किया डिस्कस अभी. देन एक बेनिफिट ये भी होता है, स्टोर कर सकते हैं हम बहुत सारा डेटा एंड रीयूज भी कर सकते हैं. लाइक वी कैन डेवलप अ क्वेश्चन बैंक और रीशफल करके हम बार बार उसको अपने कोर्स में यूज कर सकते हैं. जबकि जो फेस टू फेस एग्जामिनेशन होता है वो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती. वी हैव टू यूज मोर रिसोर्सेज फॉर फेस टू फेस एग्जामिनेशंस. दिस इज द पॉइंट, शफलिंग रेंडमाइजेशन ऑफ असेसमेंट क्वेश्चंस. तो हम सेट्स भी डिफरेंट दे सकते हैं डिफरेंट लर्नर्स को. एक साथ बैठ के आप क्विज नहीं कर सकते, अलग अलग आएगा सबको. तो दैट कैन ऑल्सो बी अ बेनिफिट फॉर ऑनलाइन असेसमेंट. नाउ माल प्रैक्टिसेस, जो आपने बोला मैम आपकी जगह दे देंगे एग्जाम. तो ये एक लिमिटेशन है. और भी है चीटिंग, एआई है आजकल, वो कॉपी पेस्ट करके, या फिर अब तो गूगल लेंस से अगर कॉपी पेस्ट नहीं भी होता तो भी यूज हो जाता है. तो माल प्रैक्टिसेस काफी सारी हो सकती हैं. 5 आवर्स का दीक्षा कोर्स 10 मिनट्स में कर लेते हैं. ओके, हम एक टाइप ऑफ असेसमेंट की भी बात करेंगे जहां पर हम सेल्फ के लिए भी असेसमेंट करते हैं. तो एक वो भी होता है ना कि हमें अपने आप से भी पूछना है कि हम क्या कर रहे हैं. तो एज अ टीचर हम करते हैं, बट कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इस तरह से करते हैं माल प्रैक्टिसेस. सो डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, ये भी हमने डिस्कस किया. जो रिमोट एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी बेटर नहीं है, तो ये इश्यू हो सकता है ऑनलाइन असेसमेंट में. देन हायर कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी की बात जो सर कह रहे थे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है. उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. डिजिटल लिटरेसी के कोर्सेज देने चाहिए लर्नर्स को. देन टेक्निकल इक्विपमेंट्स, हमें कोई ना कोई गैजेट तो चाहिए ही. अगर हम ऑनलाइन असेसमेंट कर रहे हैं तो एक जो बेसिक फ़ोन तो चाहिए ही. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन हो सकता है कि टेक्निकल इक्विपमेंट्स की कमी हो. तो देन लिमिटेशन ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे हम ऑनलाइन असेसमेंट में मेजरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही यूज करते हैं. तो सब्जेक्टिव करने में किया जा सकता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको एसेस करना, बिकॉज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो उनको इवैल्यूएट करने में हमें बहुत टाइम लग सकता है. तो लिमिटेशन है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए भी. So these are the steps, the stages when we design the assessment in online courses. So stage 1, we have to identify the learning outcome. ये stage 1 just not for the designing of assessment but also for designing a course itself. We need to give the learning outcomes कि हमें इस कोर्स से क्या अचीव होने वाला है, क्या हम लर्नर्स को सिखाना चाहते हैं इससे. तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम. तो जब कोर्स से पहले भी हम लर्निंग आउटकम डिज़ाइन करते हैं, बट असेसमेंट से पहले भी हम उन लर्निंग आउटकम्स को ही अपना बेस बनाते हैं. जब हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का यूज़ करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं या हम तो हम वो उसके सारे स्टेजेस क्रिएशन तक लेकर एनालिसिस सिंथेसिस, तो वो हमें देखना होगा. तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द लर्निंग आउटकम्स. देन डिटरमाइन इम्पॉर्टेंट एविडेंस. हमें ये देखना होगा कि जो भी हम कोर्स में जो मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल जो भी हमने कंटेंट दिया है, उसमें हमें उस कंटेंट को यूज़ करते हुए ही असेसमेंट बनाना है. एंड देन जब हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो वी नीड टू हैव द टूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग दैट असेसमेंट. देन प्लान द असेसमेंट एज पर द प्लेटफॉर्म अफोर्डेंस. जो भी हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा, क्या वो एम्बेड कर सकते हैं हम अपना टूल,
या इनबिल्ट है उसमें हमारा असेसमेंट, या हमें एक्सटर्नल लिंक देना है, दैट वी हैव टू डिसाइड इन द असेसमेंट. So this is the reflection question. Can this be considered as a formative assessment? Yes or no? Yes, informative, we can take it. Try again and try. Yes. So correct. This is a form of formative assessment. So in assessment of an online course, we have many courses where we have the inbuilt tools. बहुत सारे LMS में ऑलरेडी इनबिल्ट टूल्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम दे सकते हैं, सब्जेक्टिव दे सकते हैं. पीयर असेसमेंट का भी हम देखते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज में पीयर असेसमेंट का भी फॉर्मेट होता है उसमें. तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं एडेक्स पे या फिर कोर्सेरा पे. जब हम करते हैं तो उसमें आता है कि आपको 3-4 लर्नर्स के या स्टूडेंट्स के असेसमेंट को चेक भी करना है, उनके आंसर्स को चेक भी करना है. तो ये पीयर असेसमेंट के अंडर आ जाता है. तो ये कुछ इनबिल्ट टूल्स होते हैं जो हमारे स्वयं में भी हैं. कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं, जो हमें प्लग इन करने पड़ते हैं, जैसे H5P. यू ऑल मस्ट नो दिस. तो H5P जब हम यूज करते हैं तो हम H5P पे अपना जो कंटेंट होता है, असेसमेंट होता है, वो डेवलप करते हैं एंड देन उसको एम्बेड करते हैं, प्लग इन करते हैं थ्रू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. देन एक्सटर्नल कुछ टूल्स भी हो सकते हैं जिसमें प्लग इन नहीं किया जाता है, बट हम एक्सटर्नल लिंक उसमें प्रोवाइड करते हैं और एक्सटर्नल टूल्स के थ्रू वी गेट इट डन. तो जो इनबिल्ट टूल्स होते हैं एंड जो एम्बेडेड टूल्स होते हैं उसमें हम डेटा कैप्चर कर पाते हैं. बट यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल होता है तो हम LMS में डेटा कैप्चर तो नहीं कर पाते, बट जो थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, वहां से हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं. बट उसको फिर यहाँ पे किस तरह से हम उसको कनेक्ट करेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो यहाँ पे हम डेटा कैप्चर नहीं कर पाते, जो एक्सटर्नल टूल होता है विद इन द LMS अलग से कर लेते हैं. दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल टूल्स विच वी कैन यूज इन आवर ऑनलाइन असेसमेंट. हॉट पोटैटोज है, टेस्टमोज है, सोक्रेटिव है. क्विजेस का नाम चेंज हो गया है अभी, कल मैं जब एक्सेस कर रही थी. वेग्राउंड, यस, वेग्राउंड है क्विजेस अब. एड पजल एंड क्विजलेट. These are the external tools we can use in our online assessment. But यहाँ पे डेटा उस सॉफ्टवेयर या उस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं, देन फिर यहाँ पे आपको कनेक्ट उसको करना पड़ेगा. हाँ, this is offline, so this is not used. But now this is not useful because many others are here in the Almost platform. 10 years back, I guess we were working on this model. Yes. So can we use a poll tool like Mentimeter in an online course? How? Synchronous में हो सकता है, but online course में ज़्यादातर synchronous नहीं होता है. Flickers. मतलब यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, but very बहुत limitations है. I don't guess ऐसे freely use कर सकते because it's not synchronous like to hand. No, because assessment happens in the absence of the teacher. बट मुझे ऐसा लगता है कि हम Mentimeter यूज कर सकते हैं बिकॉज वहां पर वो ऑप्शन होता है कि हम उसको ओपन लिंक दे देते हैं, हम बाद में उसको चेक कर सकते हैं. तो हाँ, तो सिंक्रोनस ना करके उसको असिंक्रोनस मोड में हम कर सकते हैं. तो आप थोड़ा सा Mentimeter जब आप एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे होता है कि आप वो लिंक दे दें और वो ओपन कर दें. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे अवेलेबल होना है. सिंक्रोनस असेसमेंट नहीं है वो, असिंक्रोनस भी हो सकता है if you give the link of the Mentimeter. Now there are types of questions in online courses and MOOC and SPOC. इसमें ये यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में है ये. तो ये SPOC है, स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स.
एंड मूक तो आपको सभी को पता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑटोमेटेड की अगर बात करें तो मूक में हमें पता है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स आर देयर, सो थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स, मे बी इवन लैक्स ऑफ लर्नर्स आर देयर। सो वहाँ पे हम ऑटोमेटेड इजीली यूज कर सकते हैं, जबकि स्पॉक में पॉसिबिलिटी है, बट क्योंकि कम लर्नर्स होते हैं तो हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, तो पॉसिबिलिटी इज देयर, बट ऑटोमेटेड हम वहाँ पे उतना यूजफुल नहीं है जितना मूक में है। रेंडमाइजेशन, जैसा हमने कहा कि हम एक क्वेश्चन बैंक, बहुत एक लार्ज क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, एंड देन रेंडमाइजेशन के थ्रू हम डिफरेंट सेट्स दे सकते हैं, हर बार हम एक अलग क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है दोनों में ही। मूक में ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स आर देयर। देन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मूक में हम ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, बिकॉज असेसमेंट ईजी होता है, एवेल्युएशन ईजी होता है, ऑटोमेटेड हम कर पाते हैं और इजीली हमारा कोर्स फिनिश भी हो जाता है। स्पॉक में भी किया जा सकता है, कम लर्नर्स होते हैं तो पॉसिबिलिटी तो है। सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मूक में उतना पॉसिबल नहीं होता, बट हम डिस्कशन फोरम के थ्रू ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, करते भी हैं, और पीयर असेसमेंट के थ्रू भी हम इसको और आगे लेके जा सकते हैं। बट देन पीयर असेसमेंट में भी एक इशू ये हो सकता है, अगर एक पीयर ने किया है उसको इवैल्यूएट, तो उसको कौन चेक करेगा, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये इशू हो सकता है सब्जेक्टिव में, तो मूक में प्रेफरेबली नहीं करते हैं, स्पॉक में किया जाता है क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ लर्नर्स होते हैं। स्केलेबल, जैसा हमने डिस्कस किया कि लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स आर देयर, तो स्केलेबल तो मूक होता है, बहुत सारे लर्नर्स एक साथ उसमें आते हैं। देन दीज आर द असेसमेंट टाइप्स। पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो एक डायग्नोस्टिक होता है, आप सबको पता है, जो प्री नोशन हम देखते हैं कि प्री लर्निंग क्या है, प्री रिक्विजिट क्या लर्निंग है स्टूडेंट की, डायग्नोस्टिक में क्या रेमेडियल लर्निंग की ज़रूरत है। समेटिव, फाइनल एग्जामिनेशन जिसके बेसिस पर हम सर्टिफिकेशन देते हैं। फॉर्मेटिव, देन टाइमिंग के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस असेसमेंट, टर्मिनल असेसमेंट, एंड टर्म, मिड टर्म, then retrospective, where the learner reflect on the course which he or she have taken. एक होता है ipsative. ipsative के बारे में किसी ने सुना है? ipsative assessment, what is this? ipsative assessment में हम अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि लास्ट परफॉर्मेंस मेरी क्या थी और ये परफॉर्मेंस मेरी क्या है। तो जैसे नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है, ये सेल्फ रेफरेंस्ड है। तो दिस इज मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के, मैंने इसी बार जब ये रेडी करी थी मैं पीपीटी, तो ipsative टीचर का नहीं, जो भी लर्नर है, यू कैन ऑल्सो बी अ लर्नर इफ यू आर डूइंग एन ऑनलाइन कोर्स और एनी कोर्स, सो यू असेस योर सेल्फ, योर कैपेबिलिटीज। ipsative. But how it can be done, ma'am? Assessing ourselves. Means we'll watch our progress in that particular field. Yes, yes. previous progress. We do it. We already do it. Self-assessment. So now we will have a quiz on these type of assessment. Let me start. 1 second. ये पहले क्विजेस था, नाउ दिस इज वे ग्राउंड। तुषार मित्तल सर, बिस्वा, सुनीता गुप्ता, सुनील गुप्ता सर have joined. Scandura, you can type joinmyquiz.com and enter this code 650233. अब देखो, अब ठीक है, 650233 650233 joinmyquiz.com.
just join right now. सभी ने वो नाम लिख दिया अपने नाम लिख दो, रीनेम कर दो, नहीं तो फिर क्लैपिंग किसकी होगी? 650233 की। प्लीज हाँ एडिट कर लो अपने नाम। 650233 47 participants have already joined, but 3 लोगों के नाम में 650233 है। वो अपना नाम रीनेम कर लो। इजी क्विज है, बट यू हैव टू डू फास्टर। 49 participants already joined, 50. $52. How many total? 54. So 2 more. किसका नहीं हुआ है अभी तक? नाम चेंज करना। 53. So shall we start? How's the Josh? Okay. So देखते हैं कौन आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्टार्ट कर दूं? ओके, लेट्स स्टार्ट। What type of assessment is a pre-test given before a new module? बोलना नहीं है? चीटिंग? यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं थी आपको। मैं जाएंगी जो अपने आप मुझे लेके जा रहा हूँ। ये पूरा आपका वो दे रहे हैं। दोबारा से ज्वाइन कर लो। जब तक 54 of everybody will not answer. सबसे फास्ट किसने दिया It's like a Kahoot now. नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आ गया तीन लोगों ने करेक्ट दिया। So 42 have given correct answer. What type of assessment is a pre-test given before a new module? So it is diagnostic. 3 ने इसे formative बोला है और 4 ने इसे ipsative बोला है। जानबूझ के बोला है। हाँ 6 0 है आंसर। अच्छा ओके, अनअटेम्प्टेड। कुछ टेक्निकल इशू होगा। तो 76% एक्यूरेसी। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 seconds. Final exam used for certification in an example of formative, summative, retrospective, diagnostic. 15 seconds. 10 seconds to go. 5, 4, 3, 2, and 1. 90%. Wow. एक कौन है? पहले 4 को खड़ा करो जिनको दिया गया। वो टेक्निकल एरर है, वाईफाई प्रॉब्लम होगा। एक इनकरेक्ट कौन है वैसे? रिट्रोस्पेक्टिव देखो ना, आपको पता होगा। रहने दो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
Start. A weekly quiz with instant feedback and a try again option is. ये तो एक स्लाइड भी थी है तो मल्टीपल आंसर बट मैंने स्लाइड के अकॉर्डिंग दिया आंसर. अब आप लोग सिलेक्ट करो. नहीं, कंटिन्यूस इज ऑल्सो करेक्ट. हाँ, कंटिन्यूस भी करेक्ट है. यस. टर्मिनल तो नहीं. टर्मिनल तो 2 लोगों ने दिया है, वो तो नहीं है. कंटिन्यूस तो है, मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ. कंटिन्यूस है. हाँ, इनकरेक्ट है क्योंकि एक ही सही ऑप्शन एक ही हो सकता है ना. बट मैंने हिंट दिया था कि स्लाइड में था. मैंने बोला था कि वही करेक्ट है. ओके, 9 लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है. ये 15 वाले भी करेक्ट है जिन्होंने कंटिन्यूस किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेट प्रॉब्लम होगा. यही तो था ना हमने जो डिस्कस किया, लिमिटेशंस. हाँ, इप्सेटिव क्योंकि लर्नर खुद कंपेयर कर रहा है ना अपने वीक 1 एंड वीक 3 के स्कोर्स को. तो इसमें लिखा है लर्नर कंपेयरिंग, सो इट्स नॉट समेटिव. 7 में फिर से अनअटेम्प्टेड. 7 कौन है ये? मैं बाद में देखूंगी. कुछ इंटरनेट में इशू आ रहा है क्या कुछ? आप एक और 6 और भी है ना. ये क्लास जो बच्चे हाँ. Okay, next question on your screen. 30 seconds. Submitting small tasks every week for tracking progress is. Stop. ये तो कंटिन्यूस है, इसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है कुछ. ये टर्मिनल नहीं हो सकता, ये डायग्नोस्टिक नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव भी नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है इसमें. अभी 4 अनअटेम्प्टेड है. कोई नहीं, 3 तो जागे हैं ना, 7 में से 4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A single file test conducted at the end of the course. Final test. बोलना नहीं है, चीटिंग हो रही है. अनअटेम्प्टेड वालों के लिए 5, 4, 3, 2, 1. 5.
5 है 5 unattempted. Still. मैम के लिए कौन है 5 कौन है एक बार दिखाइए ना आप नहीं है ना सर? इनके वही नाम होंगे 650233. तो पहचान नहीं पाएंगे कौन है ये, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं. तो टर्मिनल आंसर है इसका. ये भी इजी क्वेश्चन था और क्लियर क्वेश्चन था. तब भी एक ने इसे कंटिन्यूअस लिखा है. एंड ऑफ द कोर्स है तो कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता. उससे आगे नेक्स्ट कोर्स करो. Apart from this one is a serious thing. Like in a classroom, when students know the answer, still they deliberately give wrong answer. Why? It happens in senior class. but what we consider about In fun ऐसा क्यों करते हैं? In fact, sometimes they join with the way, mail ID and all that. and टीचर्स को परेशान करने के लिए. हाँ, they give a complete day. ऑनलाइन क्लासेस में भी कोई Sometimes they join with the way or somebody can see your ID and it's very difficult to find out. And you write something on it. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारे जैसे अच्छे नहीं होते. इप्सेटिव हमारे जैसे अच्छे नहीं होते. हम तो बहुत अच्छे से answer करते हैं, वैसे नहीं. वो भी अच्छे हैं आज के अकॉर्डिंग. चेंज तो होंगे हमें ही. अपने आप change करते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. लास्ट क्वेश्चन है ये. ऐसे स्टूडेंट मैम अपने कनेक्ट कर रही हूँ तो वाईफाई मेरा अपना वाईफाई बंद कर दो. नहीं क्यों मेरा अपने लिए चल रहा है. 5 4 3 2 1. रिट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्शन. इसीलिए कहते हैं नकल की तब भी 10 करो बोल दिया आंसर तब भी 10 करो. ये एंजल मैडम का फर्स्ट सेशन हमेशा यही होता है फिर भी right answer. ये वही बात है जो जानबूझ के गलत आंसर देते हैं. उनको एंजल मैडम का अगेन 7 unattempted, 10 incorrect, 38 correct. Okay, let me end this. इंटरेक्टिव था 74% accuracy है. अच्छा है क्लास में First is आरुषि. Who is आरुषि? कौन है? है कौन? अच्छा हाँ. तो इनके लिए क्लैपिंग. खड़े हो जाइए. सेकंड बनीता सिंह. कौन है? नाम के लिए क्लैपिंग. 7 out of 7 है दोनों के. थर्ड इज भव्या राजपूत. कौन है? खड़े हो जाइए. नीचे वाला स्क्रॉल नहीं कर रही मैं क्योंकि फिर डायग्नोस्टिक मुझे ज्यादा लंबा सेशन लेना पड़ेगा. तो रेमेडियल क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, इसलिए नीचे अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है. राइट. हु इज गीतांजलि? गीतांजलि कौन है? गीतांजलि मैम के लिए भी क्लैपिंग. कुमार गौरव. कौन है? कौन है कुमार गौरव? आप हो? मुझे नहीं पता. सही में आप हो? अरे आप संजय दत्त के घर में ढूंढे. ओके. सलीम ढूंढे. I also enjoyed this. नीचे करना है? नहीं, मुझे डायग्नोस्टिक क्लास लेनी पड़ेगी. रिपोर्ट शेयर करनी होगी तो मैं डॉक्टर मेनका को कर दूंगी. तो फिर अपनी इप्सेटिव असेसमेंट आप कर सकते हैं.
KVS हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यही मान दिल्ली में। दिल्ली में ही है ना? NVS का नोएडा में। केवी तो बगल में इसी लाइन में सही जी। ठीक है, मैं जाते हुए फिर रिपोर्ट देते हुए जाती हूँ। ओके, सो करेक्ट जो आ रहा है रिपोर्ट वो क्या होता है? इसमें रिपोर्ट आया है करेक्ट 6 पार्शियली करेक्ट 0। पार्शियली करेक्ट। पार्शियली करेक्ट के लिए भी एक ऑप्शन है आपके मन में ना तो आप तो चेक ये परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें पार्शियली करेक्ट दे रहा है। पार्शियली करेक्ट तो नहीं देना चाहिए बिकॉज मैंने option है। एक ऑप्शन, हाँ तो मैंने वो ऑप्शंस उस तरह से नहीं दिए थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो मेरी भी गलती है कि मुझे कोई और ऑप्शन देना चाहिए था, वो 2 आंसर्स सही थे। So let's discuss the types of assessment. जैसा हमने ऐसे क्विज से भी काफी क्लैरिटी आई कि क्या है टाइप्स ऑफ असेसमेंट में। तो एंट्री बिहेवियर में जब हम बिगिनिंग ऑफ द कोर्स करते हैं टू गॉज द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, व्हाट इज द टाइप ऑफ असेसमेंट? एंट्री बिहेवियर डायग्नोस्टिक, करेक्ट। Summative में हम at the end of the course and we do it for the certification to assign a qualification by means of a numerical value or grading, that is summative. And formative में throughout the course we do this and orients the adjustments in the tracking strategy in order to achieve the learning goals. Types of entry behavior test में, diagnostic test में we do can do the survey. प्रीवियस नॉलेज के लिए हम जैसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करते हैं उसी तरह से हम सर्वे कर सकते हैं। एंड अचीवमेंट टेस्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसके लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट भी किया जा सकता है स्किल बेस्ड, अगर हमारा कोर्स है तो चेकलिस्ट का यूज भी कर सकते हैं। दीज ऑल कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, बट प्रैक्टिकल टेस्ट क्योंकि स्किल बेस्ड कोर्स है तो स्टॉक में ज़्यादा यूजफुल है। मूक्स में या जो मैसिव कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। समेटिव असेसमेंट जैसा हमने बताया एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल, एट द एंड ऑफ द कोर्स, फॉर एग्जाम्पल कल्मिनेटिंग प्रोजेक्ट, फाइनल एग्जाम, परफॉर्मेंस टास्क। दिस इज लिंक टू द सर्टिफिकेशन। प्रॉक्टर्ड भी किया जा सकता है इफ इट इज ऑनलाइन। Then invigilated exam, then online offline blended exam, दोनों possible हैं अगर हम summative assessment की बात करें तो। Then passing criteria इसमें fix किया जाता है, marking scheme बनाई जाती है, और जो benchmark होता है वो certifying body, board जो भी है like CBSE, NIOS is also a board, so ये एक passing criteria decide करते हैं। Then formative assessment during the entire course duration, ये फॉर्मल होता है ग्रेडेड, इनफॉर्मल भी हो सकता है नॉन ग्रेडेड। देन इट गिव्स फीडबैक नीडेड टू ऑर्केस्ट्रेट द कोर्स, क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने हैं वो भी हम कर सकते हैं। क्लोज द गैप बिटवीन डिजायर्ड एंड अचीव्ड लर्निंग आउटकम्स, दिस इज द कंटिन्यूअस असेसमेंट फॉर्मेटिव। नाउ दिस इज अगेन अनदर Mentimeter quiz question. QR code. हाँ ये पहले वाले, एक सेकेंड। QR कोड इसमें दिख नहीं रहा मुझे। So just type menti.com and use this code 11079771. Menti.com 11079771. 11079771. ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे लिखा है ना। One 11079771.
Which digital tools have you used for conducting an assessment? 11079771. So Kahoot काफी सारे लोग बोल रहे हैं. Quizzes. Now this is Wayground है अब. Google Form, Quizzes, Kahoot, Plickers, Wayground, Google Form, Go Informative. Google Form, Wayground. Google Form काफी लोगों का आ रहा है, Wayground काफी का आ रहे हैं. मुझे पर्सनली भी Wayground पसंद है. Google Form तो हम यूज करते हैं इन रिसर्चेस ऑल्सो. अब तो बहुत सारे AI फीचर्स भी आ गए हैं उसमें. हाँ, फ्लैश कार्ड भी है. गूगल फॉर्म बहुत सारे यूज करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों का है. सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है गूगल फॉर्म तो यूज होता है. रिसर्च में भी हम लोग भी बहुत यूज करते हैं गूगल फॉर्म. नो नीड टू क्रिएट. पैडलेट है, फ्लिकर्स, इंटरैक्टिव वर्कशीट, एडपजल, वर्ड वॉल, H5P, व्हाट्सएप पोल, ये भी यूजफुल है अभी. मेंटीमीटर. As an assignment, we can given Padlet and all that. Direct in the class, we cannot do it. That's the limitation. So you all, Socrative is also here. Mentimeter भी है. नेक्स्ट सेशन में आपको असेसमेंट डेवलप करना होगा इन्हीं सारे टूल में से किसी एक टूल को चूज करके. अब तो AI से भी बहुत सारे क्विजेस बन जाते हैं, ऑलरेडी उसमें होते भी हैं. बट AI यूज करने का ये है कि आप यूज तो करो बट उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, अपने लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज इट. बिकॉज हमारा टाइम तो बहुत बचता है उससे. अच्छा है, मतलब एक टाइम सेवर वो है हमारे लिए, लाइफ सेवर भी है. हाँ, we have to review it. So these are the appropriate formative assessment for MOOC and SPOC. Quiz using inbuilt feature of platform बहुत ज़्यादा हम MOOC में यूज़ करते हैं. SPOC में क्योंकि small number of learners are there, so बहुत ज़्यादा inbuilt features का यूज़ नहीं करते हम. Padlet और Jamboard को यूज़ किया जाता है SPOC में. MOOC में उतना पॉसिबल नहीं होता, बहुत लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स होते हैं. ब्लॉग्स एंड जर्नलिंग का यूज MOOC में कम किया जाता है, डिस्कशन फोरम वगैरह में यूज किया जाता है, बट उसको एज अ फॉर्मल और समेटिव असेसमेंट में हम नहीं करते हैं यूज, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन डिफिकल्ट है. देन पीयर असेसमेंट, इनबिल्ट फीचर, प्लगइन, ये हम यूज करते हैं दोनों में ही, MOOC में भी और SPOC में भी. देन मल्टीमीडिया सबमिशन MOOC में कम यूज किया जाता है, बट जो बाहर के MOOCs है उसमें है अभी भी ये फोटोग्राफ्स, वीडियोस हम अपलोड करते हैं. SPOC में ये किया जा सकता है अच्छे से, मल्टीमीडिया सबमिशन. देन दीज आर द एक्सटर्नल टूल्स फॉर असेसमेंट, यू कैन एक्सेस इट. हॉट पोटैटो को हम अब इतना यूज नहीं करते हैं, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे. सोक्रेटिव है, क्विजलेट है, क्विजेस, दैट इज Wayground नाउ, सो यू कैन एक्सेस इट ऑन wayground.com. and Google Forms. These are the external tools. These are the poll tools for formative assessment, maybe graded or non-graded. Kahoot you can use, Poll Everywhere, Mentimeter, Plickers. These are the inbuilt poll feature of video conferencing tools. So maybe some inbuilt poll features you can use for video conferencing. Then tool for qualitative assessment, blogs are there. Then free mind mapping software, जिसमें माइंड मैप बनाते हैं इसके थ्रू. तो ये क्वालिटेटिव असेसमेंट में यूज किया जाता है, बट क्वालिटेटिव असेसमेंट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता ऑनलाइन कोर्सेज में, क्योंकि हम वहाँ पर हम ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूज करते हैं. देन पेडलेट, इजीली इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए, फोटोज, वीडियोज, स्क्रीनशॉट, जर्नलिंग, वॉइस थ्रेड, ये सारा क्वालिटेटिव असेसमेंट में यूज किया जा सकता है.
Now what is rubric? Rubric जो होता है, this is the set of important qualities or aspects which you develop when you are giving the qualitative assessment. So there are distinct level of performance. You have to mention clearly each level, which is advanced, which is proficient, which is basic. तो आपको सारा वो descriptors के साथ आपको हर level को clarify करना होता है. And you have to do the description, give the description of each descriptor and assign numbers to each descriptor. So this is a small video on rubric, जिसमें rubric के बारे में सारी basic information है. So we can see this. When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Rubrics, a necessary component to many assessments. Now let's explain rubrics and answer some questions. First off, why should you use a rubric? Well, some types of assessments are inherently subjective. Think about a painting in an art class, or some other type of project. How would you assign a percentage or a grade to an art project? You need some sort of standard or some sort of measure for these alternative assessments. Rubrics offer some type of criteria for these subjective assignments. They help eliminate the bias that comes from these subjective assessments. Rubrics create a sense of fairness. More specifically, rubrics offer assessment objectives and desired outcomes. They provide clear and defined goals. Now, how should you use rubrics? What is the best way to incorporate the rubric into your classroom assessment? Well, the best thing to do is to make your students fully aware of the rubric and all of its components. So before an assessment, be sure to go over the assessment with the rubric beforehand. You can probably find some rubrics on the internet. Most of those rubrics are going to be very generic, however. You should try to create your own rubrics, though it will take some time. Now there are two types of rubric. One type of rubric is the analytic rubric. These rubrics grade student work by specific components. The number of components in the rubric may vary. However, each component can have a point value, usually from 1 to 4, although that can vary as well. But you can score a student on a component up to any number. These analytic rubrics offer much detail to subjective assessments. The second type of rubric is the holistic rubric. Holistic rubrics grade student work based on a whole as opposed to specific components, whereas analytic rubrics break down assessments into different parts with details. So holistic rubrics, on the other hand, sort of make judgments from afar. Holistic rubrics may be more subjective, but are definitely easier to grade for the teachers. Right now, I just want to say thank you for your time, and do me a favor and please subscribe to this channel. So, ये था रूब्रिक के बारे में. एनालिटिक एंड होलिस्टिक होता है, बट हम अपने असेसमेंट में ज़्यादातर एनालिटिक ही यूज़ करते हैं. दिस इज़ वन एग्जाम्पल फॉर रूब्रिक. दीज आर द पैरामीटर्स. ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट का कैसा है, कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट्स किस तरह से दिए हैं, रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स, एंड ये 2-3-1 में एडवांस एंड देन बेसिक की तरफ है ये 3-1. और यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्टर्स को क्लियरली मेंशन किया जाता है, सो दैट जब हम असेसमेंट को इवैल्यूएट करें, जब हम पेपर्स को इवैल्यूएट करें, सो वी यूज दीज रूब्रिक्स फॉर द इवैल्यूएशन पर्पस. So what is portfolio? E-portfolio is a record, store or archive the artifacts of learning and reflection for an individual learners. Maybe an individual learner is working on some skill-based course, so he can get the photos, videos, उससे related जितने भी skills हैं, and then he can go for the e-portfolio. Then demonstrating professional growth.
ज़्यादातर हम ई पोर्टफोलियो देखते हैं कि प्रोफेशनल फील्ड्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स भी करते हैं, क्लास स्कूल स्टूडेंट्स भी करते हैं, बट मे बी द टॉपिक कैन बी सम प्रोफेशनल वन. सो स्किल बेस्ड कुछ है. एविडेंस बेस्ड होता है क्योंकि वहाँ पे वो जो पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं जो उन्होंने सीखा है उसको उस फॉर्म में वो ई पोर्टफोलियो में दिखाते हैं. Then on what basis do you certify a learner in a MOOC? Major thing. Threshold. If a student posts that particular threshold, then we will provide him certificate. Otherwise, he has to undergo the course. But वो threshold को हम measure कैसे करते हैं? Assessment, the quizzes and the activities given there, if they are attempting them all to the criteria we have set, then we can say that person has completed them. Okay, तो overall इसको बोलेंगे क्या? ये तो आपने बहुत सारी चीजें बोल दी. Overall ये क्या है? Assessment, evaluation. आपने सही बोला है, but completing the course, certification criteria, then passing criteria. how do you get that passing criteria? Through the assessment. Through the assessment, right? But where you can get that? LMS. ठीक है, LMS में ही आप क्या मेजर चीज है जो, मतलब मैं एक होलिस्टिक वे में बात कर रही हूँ. ये सब चीजें We give a test after a course, and if one passes that test, then we provide a certificate. ठीक है, ये भी सही है. This major is learner data. तो डेटा एनालिटिक्स जो भी हमें अपने कोर्स में, तो हमें एनालिटिक्स की ज़रूरत होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि लर्निंग का क्या बिहेवियर है, कितनी बार लॉगिन किया है, कितना व्यू किया है, वो सारी चीज़ें हम लर्निंग एनालिटिक्स में देखते हैं, डेटा एनालिटिक्स में देखते हैं अपने LMS पे या हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है. पर्सनलाइज लर्निंग, देन प्रिडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, विजुअलाइज लर्निंग एक्टिविटीज़, इम्प्रूव लर्निंग मटेरियल एंड टूल्स. इन सब के लिए हमें एनालिटिक्स की ज़रूरत होती है. कोर्स एनालिटिक्स की बात करें तो यूज़र का डेमोग्राफिक डेटा हमें चाहिए होता है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव ऑन, देन टाइम ऑफ एक्सेस, ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस, असाइनमेंट कलेक्शन विद टाइम स्टैम्प, डिस्कशन फोरम, ग्रेड्स में क्लास एनालिटिक्स, इंडिविजुअल लर्नर एनालिटिक्स, ये सब की ज़रूरत होती है. तब हम ये कह सकते हैं कि हम उसको सर्टिफाई कर सकते हैं. दिस इज़ अ स्क्रीनशॉट ऑफ एनालिटिक इन अ कोर्स दैट इज़ ICT पेडागोजी इंटीग्रेशन एंड टीचिंग एंड लर्निंग. यहाँ पे हम कोर्स पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, एक्टिविटी कंप्लीशन देख सकते हैं. दिस वी कैन. नाउ दिस इज़ द असेसमेंट साइकिल फाइनल. First, we have to look into the learning outcomes, then decide what assessment we will be preparing, we will be giving. We need to gather data, analyze that data, then give the feedback, reflect on it, and action for the improvement. Again, learning outcome, this is a assessment cycle. So finally, assessment is today's means of modifying tomorrow's instruction. With this, I'm ending this presentation. And we will be breaking for tea. Tea break है 10 minutes. हाँ, आपको कुछ questions वगैरह पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं. If we have time. Any question? Is there any way to restrict Google search when child is doing the test? Is there any? Proctored आप कर सकते हैं. Proctored के लिए भी पेड है. प्रॉक्टेड में ये होता है कि आप अपना सिर भी हिलाओगे, कहीं और भी देखोगे तो वो पता चल जाता है, वो उसको. हाँ, बट दैट इज पेड. तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर सकते हो आप, इंडिविजुअली नहीं.
दूसरा तरीका इंडस्ट्रियल लेंस Any other suggestion for the session? What can I include more? असेसमेंट से ज़्यादा मजा तो आपके असेसमेंट में आया? खेलने में आया और आपको तो इंटरनेट ही नहीं चला था। मेंटीमीटर में एक बनाया मैंने अपने टीचर्स को भेजा, वो लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आंसर आ रहे हैं और ये ड्राइंग बोर्ड है उसका तो पता नहीं बट इसमें काम करना मजा आया। प्रैक्टिकल में ही ज़्यादा मजा आता है, थ्योरेटिकल तो आप सबको पता है। असेसमेंट शायद हम पढ़ भी लेते हैं, तब हमें और डाउट्स आएंगे, मैंने अच्छा था ये। Any other comments from this side? कोई comment है? For improving this session, for improving more tools. Actually, students also enjoy this side. But students didn't have the digital events. Next day, you can say who is the first, second, third. You can make the cards of QR code. लो कॉस्ट सर, आजकल मोबाइल भी उतने महंगे नहीं है, मतलब सस्ते वाले मोबाइल भी आते हैं। हाँ, तो उसको रिस्ट्रिक्शंस, बहुत पहले आकाश टैबलेट्स की बात हुई थी, अभी उसका तो कुछ हुआ नहीं, तो अभी रिसेंटली तो नहीं है, बट इंस्टीट्यूशंस अपने लेवल पर इस तरह के डिवाइसेस बना सकते हैं। यस, फॉर द पर्सनलाइज्ड यूज दे कैन डू। नहीं, अगर कंपटीशन अगर हम कर रहे हैं तो बच्चे कर लेंगे कि अगले दिन आके आपको स्क्रीन पे दिखेगा कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, देन वी कैन डू। मतलब वो मोटिवेट आपको करना है स्टूडेंट्स को। गवर्नमेंट स्कूल में The problem is we are the groundwork. So we understand it very easily. But people who are just sitting in the room and playing these instruments, they won't understand this. They can say, "मैं ये करूँ." So the people say positive. Ground reality is different. For us, though we all know that these all things can be taken up in the class. Ultimately, we know how far we are able to do it. That's a little bit question. Correct. I agree with that. Yes, that can be included. Yes, that can be included. ICT अवार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं उसमें इसी तरह की स्टोरीज होती है। कभी कभी बच्चों पे डिपेंड करता है। I was there in Uttarakhand almost for 14 years. I stayed there. Kausani place. The children were staying in small houses on the mountain and all their parents were not educated. But the way the children behaved and they were very much interested in all the activities which were conducted. That was amazing. Sign up.